वाहेगुरु 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 वाहेगुरु. Let us start to read the passage. Always step 1. So this is just a preview that I've given you as to what exactly are you going to be doing in the passage. Always and always remember this one thing. Read the passage with the intention कि ये करना क्या चाहता है या कहना क्या चाहता है, the author of the passage. Alright. Usually you will get the hang of it after you are through with, I think 8 into 10, you are 80 passages any which way. Around the roughly speaking 50 or 51st passage that you go through, you'll start to get the hang of it. These are tackled by process of eliminations. So you will need options to go in the trash can. Usually the exam will have two options that are very close to each other, but we want the more specific option to be marked. That is the basic theory of these passages. So this is basically as called as VARCs, verbal ability and reading comprehension, right? So uske andar critical reasoning is a part of this, which is primarily speaking as logical reasoning. Now, how do logics work and how do they not work? Let us work on that. Alright. पहले सर क्या कह रहे हैं? As a popular global shark known for my multiple successful international investments, I have a complex relationship with India as an investment destination. Complex relationship. So it's not certainly a simple one. It's not a good one. It's not a bad one. आदमी ने अपना intro दे दिया है कि मैं कोई 30 मार खा हूँ, है ना जी? Alright. While I am deeply enamored with the country's rich history, if you do not know what enamored is, this word has to go in your vocab list. There has to be a notebook for vocab which you need to carry to NLSAT classes. Vocab helps your reading speed, and we need the vocab to be on a very good level to improve our reading speed. Alrighty. Vibrant culture, resilience of its people. I maintain a cautious stance when it comes to investing in Indian markets. What exactly has he opened out with? अच्छा, resilience 2022 के क्वेश्चन पेपर में एंटोनिम सिनोनिम पूछता था, आजकल तो नहीं पूछ रहा है. इसका ये मतलब नहीं है कि प्रभु कभी भी जाग नहीं सकते. मुझे अपनी इंग्लिश की वोकैब थ्रू द रूफ चाहिए. Now this portion also, ये वाला जो मैं काम जो आपको करा के दूंगा of English, basically we have to cover it out. That applies to NLSAT as well. That's why these batches can't be segregated. Like for example, if you were like, मैं तो NLSAT only करूंगा जी, अच्छी बात है. फिर how do I prevent you from attending an English की class? Offline में तो we can segregate out कि अच्छा ये इस वाले कोर्स का नहीं है, ये इस वाले कोर्स का नहीं. Offline में it can't be. You tell me in one line, sir क्या कह रहे हैं हिंदी में, प्लीज उसको कर लो. अच्छा, अभी सबके टाइमर बजेंगे, मैंने पहले शुरुआत करा दी है. हाँ, तो उसमें बताओ क्या कह रहे हैं सर. ओपनिंग में क्या कह रहे हैं? मैं 30 मार खान और मुझे भारत पसंद भी है और थोड़ा सा नापसंद भी है. पहले तो उन्होंने प्रेस कर दिया. हियर इज अ ट्रिगर वर्ड, वाइल. जहां पे आ जाएगा हाउएवर, तो एक बात अपने स्कूल की पीटीएम से आप याद कर लेंगे. क्या थी उसके अंदर? बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, बड़ा बच्चा है, बहुत ही अच्छा है. हाउएवर, इसका मतलब क्या है? हाउएवर का मतलब क्या है आप बताएं? किंतु, परंतु, लेकिन, है ना? Every time that you get hit by the word however in a passage, guess what is going to happen? A question can be created. You know why? Because the author must have taken one original position, like for example, it's a very good day today. However, I am not happy. Right? So there is a counter position being taken simultaneously along with however. So as soon as you go word hunting, जहां पे भी passage में मिले however, make a note. A question most likely 90% of the 90 times out of 100 is going to pop up. Alright, पहली बात. जहां पे मिले 10, therefore, that means the author is going to conclude now based on whatever he has stated just before that.
एंड या पैसेज के बिल्कुल एंड में 10 देयरफॉर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, दैट इज हिज एंटायर कंक्लूजन इन वन लाइन, जो अभी जो प्रवचन देके गया है पिछले 7 मिनट के अंदर अंदर, राइट। क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्क्ड आउट एज द ऑथर्स मोस्ट प्रोबेबल कंक्लूजन, दैट इज द आंसर। वो नीचे ढूंढ के उसे बता देना है। सो दैट इज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन। थर्ड, अगर ऑथर बहुत ज्यादा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है, मतलब ऑथर हर चीज से ही खुश है, पैसेज में होता है भैया बहुत ज्यादा आदमी खुश है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल वीकन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट? Anything that goes against his happiness is the option that you're looking for to weaken it out. So for example, let us just say that I am going to be teaching for NLSAT. My students do phenomenally well in NLSAT. Okay, so this is basically the you can say the statement that I've made, right? Now how will you weaken it? How will you weaken it? वहाँ पे 4 ऑप्शन है। NLSAT is a tough exam, ऑप्शन ए, उठा के कूड़ेदान में फेंको, उसमें हमारे क्या लेने देना। NLSAT is highly competitive, उठा के कूड़ेदान में फेंको, मैंने क्या लेने देना। So throw it in the trash can, mentally throw it in the trash can कि ये तो पक्का नहीं है। Now come in 2 options. I am teaching for the NLSAT, तो अभी मैंने ओरिजिनली क्या बोला था, that NLSAT is a, बोलो अभी क्या बोला था मैंने, ओरिजिनली क्या स्टेट करा था, सुन नहीं रहे कोई भी, शायद सब सोए पड़े हैं जी मस्ती में, है ना जी। माई स्टूडेंट्स परफॉर्म रियली वेल, है ना, एंड आई लाइक टू टीच फॉर द NLSAT. विच ऑफ द फॉलोइंग विल वीकन माई पोजिशन? ऑप्शन नंबर सी, आई एम टीचिंग NLSAT आउट ऑफ कंपल्शन। अब ये आपके दिल के करीब आ गया है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जस्ट मेकिंग थिंग्स आउट ऑफ थिन एयर। ये अब आपके पोजिशन के थोड़ा सा करीब आ गया है, विच इज गोइंग इन अ काउंटर पोजिशन, और वहां पे लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल वीकन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, पोजिशन, स्टेटमेंट, व्हाटएवर इट इज। एंड डी, जो मैंने जो बोला था, माई स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड रियली वेल इन द NLSAT, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड वेल इन द NLSAT। अब आप और तकरीबन और करीब आ रहे हैं। तो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस दैट आई हैव गिवन यू, 2 ही आसपास रहेंगे। अब सिंस दिस इज नॉट अ प्रॉपरली फ्रेम्ड क्वेश्चन, I can't really pick out the correct one. So we need to be, when we are setting the mock paper for these examinations, मतलब इसमें टाइम लगता है इसको सेट करने में, क्योंकि आपको फंसाना है। So the examiner जब भी बनाता है ये questions, वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, तो options ही वैसे frame out करेगा। Out of the 7 to 8, मतलब let us just presume that you are getting 8 to 10 questions per passage. Out of the 8 to 10, 6 are going to be easy, 2 are really going to be a headache कि ये क्या करा है जी उसमें। And out of those 2 to 3 questions, out of the 4 options, you are going to get 2 which are totally worthy of going in the trash can, and 2 are going to be very, very similar. The trick is, we need to pick out the more precise, the more accurate option. Clear है इतनी बात? Alright. अगर enamored नहीं पता है, resilience नहीं पता है, like you can't define it very clearly, like you can make sense of it of course, but then you will need to write it down in your vocab list। और उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, एक एंटोनिम, उसका मीनिंग लिखेंगे कि गूगल से, एक एंटोनिम लिखेंगे और एक सिनोनिम लिखेंगे, and that's where vocab really starts to work. Alright. Now, India, a land of remarkable diversity, cultural depth, has always fascinated me. So he is happy with India somewhere. The country's philosophical contributions pertain in the realm of stoicism. ये क्या है, ये आदमी का क्या मतलब है? जिनको नहीं पता उसमें भी कोई शर्म खाने की जरूरत नहीं है, ये तो शुरुआत हो रही है। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि स्टोइसिज्म पूछेगा, बट यू नीड टू नो जनरली स्पीकिंग व्हाट इज स्टोइसिज्म। बोलो। वो मोटू बच्चा नहीं आता, वो कौन सा, वो राधे राधे करते रहता है, कौन है वो, अभिनव अरोड़ा, है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, ये करते रहता है वो, है ना। स्टोइसिज्म, कुछ हो जाए फर्क ही नहीं है जी। कह रहे भाई साहब वो प्लेन गिरा है, मेरे घर पे तो नहीं गिरा। भाई साहब दुनिया बहुत बेकार हो गई, नहीं मेरे लिए तो ठीक है।
stoicism basically is. So you are a what basically stoic. You are stoic. You have मतलब कुछ दुनिया में कोई भी चीज हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव, आपके साथ ही हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं. यू आर अ स्टोइक, राइट. तो कह रहा है स्टोइसिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म. नाउ सिंस मैं कहता हूँ एग्जाम में जी कुछ पता ही नहीं मुझे व्हाट इज स्टोइसिज्म, मैं फिर भी स्पिरिचुअलिज्म से डिड्यूस करके कह सकता हूँ कि आसपास ही होगा. वैराग्य है स्टोइसिज्म. हिंदी में जिसको आप कहते हैं ना, ये तो वैरागी आदमी है. वैरागी आदमी ना मतलब ना धन ना दौलत ना ऑपोजिट जेंडर से कोई लेना देना है, ना कोई रैंक आए. अटेम्प्ट दिया था, निकल गया तो निकल गया. कह रहे भाई साहब वो आपने वो साल भर चाहते हैं तो क्या हो गया, जो ईश्वर की इच्छा. स्टोइसिज्म. अंडरस्टूड? ठीक है जी, ओके. Are profound and have influenced my own thinking. The Indian cuisine with its integrated blend of spices and flavors is a delight. ये आदमी है कौन? स्टार्टअप फाउंडर है. ये हमारे कल्चर के बारे में राग गा रहा है. एक्चुअली इसको पैसों के बारे में राग गाना चाहिए था, वो तो ये कर नहीं रहा, और उसके अंदर अब ये तबाही करेगा पक्का. क्योंकि इसने शुरुआत भी इसीलिए करी थी कि आई मेंटेन अ कॉशियस स्टांस. कह रहा है वो वैसे मुझे देश बहुत मतलब वही है, डेटिंग कर लूंगा शादी नहीं करूंगा. वही है ना ये कि हाँ भाई साहब डेटिंग डूटिंग तक सब ठीक है, जिस टाइम शादी आएगी उस टाइम पे स्टेटस देखूंगा, पैसा देखूंगा और ब्याह नहीं करूंगा. यही है ना पोजीशन. ओके आगे चलते हैं. द फेस्टिवल इज फुल ऑफ कलर एंड लाइफ, टेस्टमेंट टू द कंट्रीज ग्रेट cultural aspects. I find basically net is very positive on our culture and loves our Kumbh Mela. मुबारक आपको. however हुआ है, आ गए सर रोते हुए कि देखो अब अभी तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन किंतु परंतु लेकिन. alright, now however my admiration for Indian culture does not extend to viewing India as a favorable investment landscape. My investment philosophy, deeply ingrained in value investing principles, prioritizes long-term stability, predictable environments, and transparent corporate governance. इस पे एक क्वेश्चन बना सकता हूँ, मुझे नहीं पता मेरे मॉक में है कि मुझे अब याद ही नहीं है. Which of the following is not one of the author's preferences? इसमें 3 ऑप्शन यहाँ से होंगे और एक चौथा होगा जो कि यहाँ लिखा नहीं है, वही आंसर. So it is a classic reading comprehension का question. Such questions are reading comprehension के questions. Hopefully this is clear as to जहाँ पे pro tip for life, जहाँ पे ऐसी कोई लिस्ट दे रखी हो, एक नोट का क्वेश्चन आप उम्मीद लगा सकते हैं. मिले तो रन बैक टू द पैसेज एंड ट्राई टू स्पॉट इट कि कहाँ पे था भाई. क्लियर है कि नहीं? ओके. In these areas, I find India's market to be fraught with complexity that deter my investment appetite. अंडरस्टूड. कह रहे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मेरे को प्रॉब्लम है यहाँ पे. मतलब वही है कि मंडी हिमाचल प्रदेश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मानसून्स में नहीं जाऊंगा. अभी तबाही हो चुकी है वहाँ पे. दिस एवरीथिंग it's basically it's been hit hard just like it was hit hard in 23. Again it has been completely devastated by flash floods. मेरा मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन ऐसा है दूर से देखो मगर दूर से टाइप. हिंदुस्तान के बारे में क्या. Alright. Firstly, Indian market is characterized. अब अपने now he starts out with the reasons. अच्छा, यूजली पैसेज लेंथ इतनी ही होती है, तो जब हम भी मॉक डिजाइन करते हैं क्वेश्चन पेपर में से वर्ड काउंटर में लगाकर वर्ड काउंटिंग करा के अपना भी पैसेज वैसे ही ट्रंकेट कर देते हैं. Whether it's from a book, whether it's from a newspaper, we make a lot of edits basically to try to get the passage to be customized for the exam. Alright. Characterized by a high degree of volatility and unpredictability, partly due to country's socio-political dynamics. Great work which influence market behaviors. Furthermore, अच्छा एक और ट्रिगर वर्ड आया है furthermore. Furthermore का क्या मतलब है? Yes, adding on. कह रहा है अभी तो जो बोला था उसी में ऐड करना तुम. अब ये काउंटर पोजिशन नहीं है, ये सेम पोजिशन है. So this is another trigger word for you. Watch out for these trigger words. Guess what? Questions are created based on what follows these words. Alright. The regulatory environment in India, while improving, still presents challenges in terms of consistency, transparency, frequent policy changes, bureaucratic hurdles. पसंद नहीं है इसको हमारा देश पैसे लगाने के लिए. That's it.
Another concern is corporate governance. While there are certainly exceptions, the overall standard does not meet the thresholds I consider necessarily. So this is being written by, first person sort of a point of view. All right. Then I'm not going to read through the entire thing. We're going to come here. Moreover, the Indian economy, despite its rapid growth and potential, still grapples with structural issues. Great work. Now, again, हमारे और basically problems गिनवाई जा रहा है. शुरुआत कैसे करी थी सर ने कि मेरा कल्चर वल्चर तो बहुत ही मुझे पसंद है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे. ओके, इन समरी वाइल इंडिया एज अ कंट्री होल्ड्स अ स्पेशल, तो यहाँ पे देयरफॉर thus भी यूज कर सकता था इंस्टेड ऑफ. नाउ ही इज कंक्लूडिंग इट. दिस इज हिज कंक्लूजन. अगर मेरे पूरा पैसेज भी सर ने ना दे रखा होता ना और मुझे केवल ये दे रखा होता तो भी चल जाता. हमें इसकी एग्जैक्ट पोजीशन इन वन स्नैपशॉट पता चलती कि नहीं चलती? एग्जैक्टली पता चल जाती कि क्या हो रहा है. Alright. Extracted with edits and revisions from Mark Cuban, passage 1's level in NLSAT 23. जो भी NLSAT 23 के अंदर जो भी 1 होगा ऐसे ही कुछ होगा. So he has taken 2 positions overall in the passage. He has given his reasons why he likes the country, why he does not like the country. He does not like the country only for investment purposes. Rest everything is fine with the country. है ना? And what does he like about the country? Its culture, its spirituality, and it's वही जो हमारे वही जो प्रवचन की जो बात होती है. Oh my God, you are such a nice person. I love you as a friend. अरे अरे ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी. तो ये I love you as a friend ही लेके बैठा हुआ है जिंदगी में कि भारत बहुत अच्छी बात है, पैसे नहीं जाएंगे मेरे. ठीक है जी, ओके, चलते हैं आगे. Which of the following if true? So basically whenever ये if true है, that means they are fictional options. They are not in the passage, they are not stated, they are not general truths. वो कह रहा है you presume this option to be true. Alright. Would most strengthen the argument against investing in India. Would most strengthen the argument against investing in India. इसका क्या मतलब है? बताओ. Options नहीं देखते अभी, इस पे आते हैं. तो अगर मान लेते हैं मैंने ऑप्शन टोटल नहीं पढ़े, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा पक्का जो बताएगा कि अभी तो तुमने भारत के बारे में जितना जानते हो उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स और बेकार हैं. तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया. सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड दैट ऑप्शन विच विल सपोर्ट आवर पोजिशन दैट मुझे पैसा नहीं लगाना है प्रभु. क्लियर है कि नहीं? राइट, दिस इज वॉट वी आर हंटिंग फॉर. ओके, India's GDP has been growing steadily over the past decade. भैया अगर ये ट्रू है तो ये तो it will weaken the argument against investing in India. It won't strengthen it. It is not supporting you. Strengthen will always support. It has to support the position that has been given in the question, right? ये तो weaken कर देगा. Clear है कि क्यों करेगा? अगर इंडिया की GDP बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है इंडिया की GDP में सब कुछ, तो एक बात सोच के देखना, तो मुझे और पैसे लगाने चाहिए. I will want to invest more, is it not? Right? Okay. Recent reforms have made the Indian market more accessible to foreign investors. If this is true, do you want the money to flow more or do you want the money to be held outside? Bolo? Flow more. Right, okay. Reports of corporate governance in issues in Indian companies have increased. Oh, problem. अगर ये रिपोर्ट सच्ची हैं, so you have to presume this option to be true. अगर ये रिपोर्ट सच्ची हैं, तो बोलें this supports. This strengthens the argument against investing in India. Correct? Throw these 2 in the trash can. Because they are totally inverse to our position. Throw them away. ये तो पक्का 2 नहीं है. A और B तो पक्का नहीं है इसका आंसर. अब C और D में हंटिंग करते हैं. C कभी भी ऑप्शन देखते ही ये मत बोलना कि यही है. पोजीशन लेना हो सकता है. I can't say it with full certainty कि क्या चक्कर है. Okay. D. The Indian government has launched initiatives to boost cultural tourism. इसका हमारी इन्वेस्टिंग इन इंडिया से क्या लेना देना है प्रभु? कुछ भी नहीं. मार्क करो, आगे बढ़ो.
राइट? अभी तो देखो ये प्रवचनकारी में बहुत अच्छा लग रहा है, जब ये स्पीड में करना पड़ता है. प्रॉब्लम इज द स्पीड, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्विंग. ऐसा सॉल्व करके बैठे 4 घंटे में कर दिया जी पेपर, 75 में से 75 ही आएंगे पार्टी में. जिस टाइम पे स्पीड लगा दूं, हड़बड़ हो रही है, वहां पे चल रहा है पेपर, एग्जाम, आप एनएलयू दिल्ली में बैठे हो और एग्जाम, 50 भी नहीं आते तब. दैट एंटायर थिंग इज एग्जाम डे परफॉर्मेंस. उसको हमने मॉक से करना है, सिमुलेट ये. और दूसरी बात ये करना है, इस एग्जाम, इस स्टडी मटेरियल, इन क्लासेस को आप बिना टाइमर के करेंगे ही नहीं. टाइमर इज योर गॉड इन एनएलसैट. द टाइमर इज एवरीथिंग. होपफुली दिस इज क्लियर. क्या क्या करना है हमने? ऑथर की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है, ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं और अपना करेक्ट आंसर दे देना है. राइट? यूजुअली अच्छा, अब क्या होता है एग्जाम में, एक और प्रभु होते हैं जो कभी कभार, आई विल शो यू, ऐसे ऑप्शंस भी हमें मिलेंगे जो इससे बेटर है, इससे मोर एक्यूरेट है, इससे मोर टाइड इनटू द पैसेज है. वो होता है करेक्ट वाला आंसर. अब ये कह रहे हैं भाई साहब ये कैसे पता? इसका एक ही इलाज है, क्या आप बोले उसका क्या नाम है? प्रैक्टिस. प्रैक्टिस. इसको, और ये जो प्रवचनकारी जो चल रही है, ये जो लेक्चर है, ये बार बार वील गो थ्रू, ऑफ कोर्स वी हैव टू गो थ्रू 10 मॉक्स. बार बार सुनते सुनते पता चल जाए थोड़े टाइम में अपने आप, योर माइंड विल लैच ऑन टू द आइडिया एज टू व्हाट यू वांट टू डू. आई वांट अ 60+ इन पार्ट ए. टारगेट ही रखेंगे ना, मतलब टारगेट चलो 60+, 70+ टारगेट रखेंगे तो 60+ आ ही जाएंगे. इतने तो आएंगे भाई, इतनी मेहनत करके जा रहे हैं. 62, 63 तो आने चाहिए, क्यों नहीं आएंगे? सबके आते, बतेरों के आते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आ जाएंगे, हमारे भी आ जाएंगे. द टॉपर आई थिंक दिस ईयर वाज आल्सो एट, 1 सेकेंड, स्कोर कार्ड देखते हैं दीदी का. ओके, द टॉपर्स इज एट 61.25 and her all India rank in part A is 18. So that means there are 17 more people who have scored more than a 61.25. So that means people did score. Rank 10, I think, give me 1 second. Rank 10 in part A, not overall, didn't get selected. हाँ जी, 62.5. Didn't get selected. Part A, 62.5. 62.5 एंड कितने बोला था मैंने टॉपर का? 61.25, 61.25 एंड 62.5. 7 लोग बैठे हैं इसी रेंज में. तो इसका मतलब जो पार्ट ए का जो ओवरऑल जो टॉपर होगा, मुझे नहीं पता उसकी ऑल इंडिया रैंक क्या है, जो पार्ट ए का ओवरऑल टॉपिक होगा 63, 64 पे तो बैठा ही है. अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. किसी के माथे में सॉलिटेयर तो लगा नहीं कि तुम बहुत अलग आए हो, हम नहीं, बिल्कुल करेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. चलें आगे. ओके, ऑलराइट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग assumptions underlies the author's argument? Now herein we'll take 1 second की break and we are going to see what assumptions is. What is an assumption? Something that you accept is true even though you have no proof is the formal definition. Write this somewhere down. इसी के ऊपर का ही अपने मॉक के अंदर ही लिख लो, assumption की formal definition लिख लो. एक बात याद रखेंगे, assumption will never be given in the passage. है ना? Assumption will never be given in the passage. This year, देखता हूँ फिर से, मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली. Give me 1 second so that I can come back to you.
मेरे ढूंढने पे मुझे ही मेरा डेटा नहीं मिलता है, बट एनी विच वे, हाँ ठीक है, मिल गया। ओके 23, 22, 24, 25, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओवरऑल समथिंग लाइक सो 15 to 18 पीपल समझ सकते हैं मस्ट हैव गॉटन सिलेक्टेड। मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, कैन यू एज्यूम एनीथिंग अबाउट इट? बोलिए, what is the assumption that we can make? This information can be false. Let us say that I tell you, so out of the batch, so we had an online batch last year, क्योंकि offline batch as you see सिर्फ 10 लोग बैठे हुए हैं अभी, mostly जैसे जैसे batch चलेगा तो 10 और join in हो जाएंगे, so 20 basically. That's why you will mostly not get a dedicated 3-year LLB का batch. But 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 people from the batch have gotten selected. 12 people. What is the assumption that you can make? If I tell you the batch size was 1000, what is the assumption that you can make? Bolo. What is the reasonable? Acha, what is the conclusion that you can extract out? 12 out of 1000. मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ 50 ही लोग थे और 40 ही सीट थे. That's a very high success rate. But think about it. If 12 out of 1000, the conclusion for sure you can say, कि काफियों का नहीं हुआ. That is the one thing that you can conclude for sure, right? Assumption will never be given to you in the paragraph. Assumption is something that is standing behind the scenes, right? Assumption. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव यू अ स्टेटमेंट कि हाँ वो अकेडमीज यूजली डू नॉट रन अ डेडिकेटेड 3-year LLB बैच, ये मेरी assumption है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है. मैं तो आप ही लोगों से सुना है कि जहां जहां फोन करा था वो कहते क्लैट वालों के साथ बैठा देंगे. ये मेरी assumption, मैंने तो जाके देखा नहीं है ना. सो आई एम assuming things. Don't we all assume things and create misunderstandings in our life all the time, right? अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन. सो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिख ली. फॉर्मल डेफिनेशन इन्फ्रेंस की भी लिखेंगे व्हेन वी कम टू एन इन्फ्रेंस, राइट? डिडक्शन, इन्फ्रेंस अभी आते हैं उस सब पे. जैसे जैसे टॉपिक इनकाउंटर होंगे वैसे वैसे हम पकड़ लेंगे. अच्छा, अभी एक क्लास में क्रिटिकल रीजनिंग की थ्योरी पे लेने वाला हूं. What are the critical reasoning की theories and how do we spot it, in which we won't solve passages. I will get excerpts and then we are going to work and extract out everything, right? And that will basically, to tell you honestly, that class will kill off part A for you. Post that class, nothing is more valuable than that class. That will basically kill off entire part A for you. ठीक है जी. और वो कब होगी? थोड़े ही हफ्तों में. Okay. Now we come back here. चल जाओ भैया. अच्छा, वो चलने को राजी नहीं है, कोई बात नहीं. गिव मी 1 second. यहां से पकड़ लेंगे. Which of the following assumptions underlies the author's arguments? Great. Cultural richness positively correlates with investment potential. We're just going to see the options first. High economic growth automatically translates into good investment opportunities. Predictability and transparency are crucial for long-term investment decisions. India's festivals and cuisines are integral to its economic stability. ये ऑप्शन कैसा लग रहा है? लास्ट वाला. वो कह रहे यार ये तो नहीं, इसका हमारे पैरा से कोई लेना देना नहीं है. इस भाई को तो मैं फॉर श्योर एलिमिनेट कर सकता हूं. मुझे क्वेश्चन समझ ना भी आ रहा हो, क्योंकि देखिए अटेम्प्ट तो मुझे सारे करने हैं, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं भी करूंगा तो भी नेगेटिव तो मिल ही जाएंगे, है ना, राइट? अच्छा, ऑप्शन सी, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आर क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. कैसा लग रहा है ये ऑप्शन? बोलिए कैसा लग रहा है ये ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ, ऑफ कोर्स. बताएं. इट डज, है ना, थोड़ा सा तो है, क्योंकि वो गाना ही यही गा रहा था कि अगर ये होता तो बहुत अच्छा था, है ना. तो हमने, ही इज अज्यूमिंग कि अगर ये 2 फैक्टर होंगे
इट विल हेल्प हिम टू मेक अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? हाई इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट्स इनटू गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये तो जनरल ट्रूथ है, ये अजम्पशन ही कहाँ है? ये तो ऑटोमेटिकली इट इज मेकिंग सेंस, ये तो ऑथर का कोई लेना देना ही नहीं। ऑफ कोर्स हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑफ कोर्स इट ट्रांसलेट्स इनटू गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना? ये अजम्पशन नहीं है, ये तो एक तरह से आप कह सकते हो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। इट विल मेक सेंस इवन विदाउट द पैसेज। तो ये तो आंसर पक्का नहीं, हटाओ। कल्चरल रिचनेस पॉजिटिव कोरिलेट्स विद इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, इफ दैट वर ट्रू तो ये पैसेज में रो ही क्यों रहा था? पैसेज में रो रहे थे सर, दैट वर ट्रू तो पैसेज में रो क्यों रहे थे आप? क्या हो गया आंसर? यही है कि नहीं? है कि नहीं? मैं कहता हूं मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया पढ़ के, मैं रिवर्स इंजीनियर कर दूंगा क्रिटिकल रीजनिंग में, कैट, जीमैट, क्लैट सब रिवर्स इंजीनियरिंग करके ही क्वेश्चन, सवाल इसको कहते हैं हिंदी में हमारी एग्जाम की भाषा में कि सवाल बन गया, सवाल बन गया, हलवा पेपर था, ऐसी बातें होती हैं पेपर्स के बारे में। सवाल बन गया, तेरे कितने बने, बन गया सवाल। आता नहीं था मुझे नहीं पता, मैं तो ऑप्शन एलिमिनेट कर करके फाइनली गोली दाग दी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि 50-50 चांस होता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, दागनी तो पड़ेगी गोली। क्यों? नेगेटिव ऐसे ही मिलना है। जब नेगेटिव, देखो जीवन में अगर रोना ही है तो फिर मर्सिडीज में बैठ के नहीं रो लेंगे, कम से कम 7 सीट ऑन होगी और दूसरा रो रहा होगा कि ये मर्सिडीज में, फिर मारुति में बैठ के क्यों रोना है? फिर तो ठीक ही कॉलेज में बैठ के रो लेंगे। भाई अगर लॉ में कह रहे जी लॉ में कुछ नहीं रखा, अच्छी बात है, तो मैं एनएलएस से जाके कर लेता हूँ ना लॉ, फिर अच्छी जगह से कर लेते हैं। फिर डीयू में भी कुछ नहीं रखा, फिर एनएलएस में भी कुछ नहीं रखा, कोई बात नहीं, जा जाओ। ये जनरल स्टेटमेंट्स नहीं है, ये जस्ट हाइपोथेटिकल फिक्शनल आर्ग्यूमेंट से पता चले आप पीछे पड़ गए, कह रहे जी लॉ में कुछ नहीं रखा और हम यहाँ कोचिंग कर रहे हैं। अच्छा, द ऑथर्स स्टांस ऑन इन्वेस्टिंग इन इंडिया कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एंथुसियास्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो नहीं है ये, सो दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑन टोन। एंथुसियास्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है ये। एंथुसियास्टिक तो ये केवल हमारे बनारस के लिए है कि वहां बर्निंग हार्ट होता है, हर ही गली में महादेव बसे हैं। कह रहे भाई साहब वो पैसे लगाने, थोड़ा सा नहीं, हम तो नहीं करने वाले, ठीक है जी, ये तो पक्का नहीं है। कॉशियस एंड स्केप्टिकल याद रख लेना, हो सकता है, अभी नहीं मैं कंक्लूड करने वाला, अभी मैं ओएमआर में मार्क, क्योंकि याद रखिएगा ओएमआर में मार्क कर दिया तो स्किपिंग नॉट अलाउड, यू कांट चेंज योर पोजीशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो ये है नहीं, इसीलिए जो मार्क करेंगे वी नीड टू बी 100% श्योर एज टू मे व्हाट डू आई वांट टू मार्क ऑन दैट बबल, क्योंकि उसके बाद कटिंग, पेस्टिंग, वाइटिंग कुछ नहीं, इट इज गॉन। ओके, सी इंडिफरेंट एंड न्यूट्रल तो नहीं है ये आदमी, पक्का नहीं है। He has a very specific position. Indifferent and neutral would have been, India is a great country for investment, can be considered, but I am really not interested. I haven't explored it. Stoicism का एक एलिमेंट सा आ गया कि यहाँ थोड़ा सा हिंदुस्तान की तरफ देख लेंगे, ठीक है जी, ओके। फिर क्या कर रहे हैं? अनइन्फॉर्म्ड एंड बायस। देखिए सुनिए, अनइन्फॉर्म्ड, ये मैं कह सकता हूँ कि ये गधा है, मार्क क्यूबन गधा है, इसे कुछ नहीं पता भारत के बारे में, ये क्या हमें सिखाएगा, हमारे यहाँ की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बल्ले बल्ले हमारी। वो मेरा ओपिनियन है, वो ऑथर का स्टांस नहीं है। ऑथर का स्टांस तो कॉशियस एंड स्केप्टिकल ही है। प्रो टिप फॉर लाइफ इन क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, एलिमिनेट द डैम ऑप्शंस, यू विल गेट योर आंसर। इन द टफर क्वेश्चंस you will have out of the 4, 2 can be eliminated very easily, prima facie you can throw them out of the window, 2 you're going to get hit with, and 2 में से the more accurate, the more certain option is the answer. And how do we get the hang of it? Practice. And what is practice? This is practice, in wherein I am explaining this out to you is, well, it is practice, right? This commentary, this pravachanकारी is what makes all the difference. And we, अब तो पूरा साल पड़ा हुआ है हमारे पास, हमें स्टार्टिंग इन जुलाई, दिसंबर तक हमने सारा स्टडी मटेरियल कंप्लीट करना है, और वहां के जो मॉक बनेंगे, हर मॉक को अटेम्प्ट करने के बाद पूरा डिस्कस करना है। दैट्स NLSAT कोचिंग फॉर यू, अंडरस्टूड है?
राइट, दैट्स प्रीटी मच इट। एंड साथ में करंट अफेयर चलते रहेंगे, पार्ट बी हम डिस्कस करेंगे। आई बेसिकली आज तो मैं पार्ट ए की क्लास पे हूँ, अगली बार मैं आपसे पार्ट बी की क्लास करूंगा, क्योंकि ऐसे तो बोरिंग हो जाएगा। पार्ट ए पार्ट बी पार्ट ए पार्ट बी करते 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 अपनी गाड़ी पहुंचा देंगे। दैट्स इट। अच्छा, इंग्लिश का काम जो हम वहां करेंगे CUET PG वगैरह में, वो यहाँ पे भी हमें काम आ जाएगा। Our reading speed is going to take a boost thanks to CUET PG. अच्छा, Constitution and Polity से I'll get some pointers for essays, right? और मेरे बाकी एग्जाम्स का भी स्टैटिक जीके हो रहा है। प्लस अगेन everything plays a role. Every 10 marks, 10%, they play a role in developing, and everything helps. अगर हमने इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये तो पूछता नहीं, ये छोड़ो, हार जाएंगे हम। देखिए कंपटीशन इनसेन है, तो हमें बिल्कुल दम लगा के हईशा कह रहे जी मैं पूरी तरह से प्रिपरेशन करके आया हूं, मैं भी देखता हूं कौन कितनी करके आया। ऑलराइट, ठीक है जी, ओके। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑथर्स इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी? सर क्या कह रहे? इट फेवर्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। सच्ची हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता ना, हिंदुस्तान में बहुत प्रॉब्लम है। ये लो मेरा पैसा, जो होगा देखी जाएगी, जय श्री राम, हालेलुया, ले पैसा लगा। मेरे जी वो सरदार जी की एक स्पीच आई थी, वो सभी बोल दिया। क्या बोलते हैं वो, पता नहीं कौन सा बादल था पंजाब का, ये आई थिंक MP है या CM, वो सारे बोल गया। कह रही जी सारे सेक्युलरिज्म में जय श्री राम, हालेलुया, अल्लाह अकबर सब बोल गया। कह रही लो जी देखी जाएगी जी आगे, ठीक है। अच्छा, इट प्रायोरिटाइजेस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। ये मुझे थोड़ा सा कह रहे जी, मैं रेड अलर्ट मोड पे हूँ पैसेज पढ़ने के बाद कि शायद प्रभु कर सकते हैं, लेकिन और देखते हैं। इट इज सोनली बेस्ड ऑन कल्चरल एफिनिटी। एफिनिटी का अगर मतलब एफिनिटी सलून नहीं जो दिल्ली में जो बाल काटने की जगह, नहीं, एफिनिटी का अब आप वर्ड वो कैब में, एफिनिटी बहुत टेढ़ा शब्द है। व्हाट इज एफिनिटी? बोले व्हाट इज एफिनिटी? अरे भाई बात करो, 10 लोग बैठे नहीं है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता। अच्छा हाँ बोलो। आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप यहाँ पे आए क्यों हैं? हाँ, निष्कल्प जो निष्कल्प कर रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है आप लोग यहाँ आए क्यों हैं? पढ़ने आए। अरे वाटर इज वेट, स्काई इज ब्लू, आई एम एन इडियट, सो आर यू। नहीं, you feel connected to this teaching style, therefore you are here, you have an affinity with it. आप खान सर से पढ़ने नहीं जाते, not that I have a problem with him, I respect him completely. He will not work out in this scene. However, he is going to dominate SSC, PCS, wherein the crowd has the same dialect as him. मेरी तो हिंदी और इंग्लिश ही नहीं पल्ले पड़ती, लोगों को कहते हैं आधे अंग्रेज की औलाद है, ये यूट्यूब के कमेंट में पड़ा रहता है कि ये कौन है, हमें नहीं समझ में आ रही इसकी बात। That's how it works. That's how it works. जैसे कि कल हमने बातचीत करी थी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट भाई बंधु अपनी जगह रहना चाहते हैं। आप लोग इधर आए हैं क्योंकि एक टीचिंग स्टाइल से कुछ ना कुछ एफिनिटी है, right? You want, you feel connected to it, so that's affinity. ओवरऑल जो फॉर्मल जो शब्द है एफिनिटी का, मतलब फॉर्मल मीनिंग देख लेते हैं। एफिनिटी मीनिंग, a natural liking for an understanding of someone or something. You have an affinity with it, right? So you have an affinity with the subject. Let us say that you meet me in law school, as in you're going to meet me in law school. वो कह रहा है जी कैसे? मैं लॉ ही पढ़ाता हूँ, ये तो मेरा भिक्षा बोल है, मतलब कह रहे जी यहाँ से मेरा घर चलता है, कोचिंग करा के पढ़ाता मैं लॉ ही। जब आप मेरे दूसरे लेक्चर देखेंगे, जब लॉ स्कूल वाले जो हैं कोर्ट रूम बाय TLO आएंगे चैनल पे, आपको समझ में आ जाएगी कि अरे हम इसी आदमी से पढ़ के आए थे, मुझे लॉ आती है। मतलब मुझे CRPC एक सब्जेक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर, CPC सिविल प्रोसीजर, मुझे बहुत हाई लेवल पे आती है। वो तो मेरे जुडिशरी वाले भाई बंधुओं के साथ धोखा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं तो मैं इस साल यहाँ पे आपको दिखता नहीं। तो आपकी मेरी मुलाकात होगी लॉ स्कूल में, यूट्यूब पे सारी दुनिया देखती है। 2 चैनल हैं, एक तो छोटू चैनल है, एक बड़ा वाला चैनल है। शायद हम छोटू चैनल पे ये पहला लेक्चर पोस्ट भी करेंगे। तो आई हैव एन एफिनिटी विद लॉ, देयरफॉर आई एम हियर, राइट? अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट एफिनिटी इज। अब मिल गया शब्द तो अच्छा लगा, तो हमने आगे देख लिया। ओके, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड्स। सॉरी, ओके।
3 बार सॉरी बोलेंगे, चौथी बार आंसर आ जाएगा जिस पे ओके जा रहा होगा. एज सिंपल एज दैट. लेकिन फिर भी द टॉपर्स आर एट 63 आउट ऑफ 75. यू नो व्हाई? एग्जाम डे एंजाइटी, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं. सेम पेपर कैन बी सॉल्व व्हेन यू बैक सॉल्व इट. लाइक ये हाउ डिड आई मार्क दिस इनकरेक्ट, व्हाट वाज आई थिंकिंग? You weren't thinking anything. It was exam day anxiety. Exam day performance matters. मेरी एक स्टूडेंट है फ्रॉम 23, उनका नाम था लीजा कुकरेजा. तो वो अभी DU में है. She didn't make it to NLS by I think about 2-3 marks. She didn't make it. एग्जाम डे पे 104 बुखार चढ़ा हुआ था, 103 बुखार चढ़ गया था. पूरे साल प्रिपरेशन, मतलब शी वॉज बाउंड टू मेक इट. NLU दिल्ली गई, उस साल NLU दिल्ली बढ़ा था सेंटर, AC के नीचे बिठा दिया गया. अब पूरा पेपर, यहाँ तो नाक बह रही है, गले में दर्द है. आप वाकई में परफॉर्म कर पाएंगे? सच्ची सच्ची बात बताएं. अब उसमें बताएं हमारी क्या गलती और उनकी क्या गलती. किस्मत पे, किस्मत को गाली दीजिए और आगे बढ़िए. लेकिन किस्मत को गाली तभी देंगे जब पूरा साल पढ़ाई करी होगी. राइट? ठीक है जी, ओके, चलें आगे. द ऑथर्स व्यू ऑफ इंडिया सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स सजेस्ट दैट दे आर अ मेजर ड्राइवर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ. Really? Okay. They contribute to market volatility and unpredictability. They are irrelevant to investment decisions. They have no impact on regulatory environments. बताओ. Socio-political dynamics क्या कर रहे होंगे? They are a major driver of India's growth. ये पोजीशन ली थी उसने? पक्का? We are sure on this. We need not go into the passage again. है ना? Okay. They contribute to market volatility and unpredictability. हो सकता है क्योंकि सुनाई ठीक दे रहा है ना? ओके, तो इसको मैं ना टिक मार्क कर रहा हूं, ना क्रॉस लगा रहा हूं, मैं डैश लगा रहा हूं इस पे. I'll consider it. They are irrelevant to investment decisions. ये तो पूरा गाना ही अभी पिछले पेज पे गा के गया, नहीं? हटाओ इसको. They have no impact on regulatory environment. Seriously, तो इतना वो however, किंतु परंतु क्यों लगा के गया था भैया लोग? क्लियर है? You'll get the hang of it very very soon. मुझे 60 प्लस ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए. मैं बहुत मेहनत डालूंगा, आप भी बहुत मेहनत डालेंगे. 60 प्लस चाहिए. निष्काल पिछले बार कितने आए थे? 10 नंबर और चाहिए. 53 is not bad. 43 पे होता I would have said खराब हो गया. 53 is very good. क्योंकि 53 पे लोगों की सिलेक्शन हुई है. इसका मतलब हम पार्ट बी में मार खा गए. भाई पार्ट बी में अगर हमारे 40 प्लस होते तो सिलेक्शन थी, राइट? 24 की rank 1 was also a second attempter. This year's rank 6 is a second attempter. How many more we don't know. This year's rank 32 is a second attempter. ये सिर्फ मुझे पता है, बाकी अभी तो मतलब ऐसे बतेरे होंगे, राइट? तो अच्छा, तो हमारा कंपटीशन उनसे भी है जिनको इस पेपर के बारे में पता है. अब उनको उतनी एग्जाम डे एंजाइटी हमारी तो है नहीं, फर्स्ट अटेम्प्टर वालों जितनी. तो कृपया करके देखिए, competition, seat matrix, reservation, quota, we only need one. I can't induce someone to mark the OMR incorrectly, right? I can only mark mine in the most correct manner that I know it to be. Correct? Okay. Which of the following, if true, would most weaken the author's argument? If, let us say, if I were to make this thing true, that all of the jazz that he cried about has no impact in any other country, guess what happens? His argument collapses. If true meaning it is generally not true, fictional है. देखते हैं. Indian companies are increasingly adopting global corporate governance standards. अच्छा, ठीक लग रहा है मुझे. What most weaken the author's argument, but यहाँ पे एक word है. Clear? Okay. The author has made significant investments in other markets with similar challenges. If this is true, what exactly is he doing in other markets with similar challenges? Right? Okay. The Indian government has been stable and consistent in policy making.
India's cultural aspects have started influencing its corporate practice. देख ऐसा है, ये तो बकवास की बात है. It does nothing. अगर culture has started influencing corporate practices, उससे क्या लेना देना है? उससे कोई लेना देना नहीं. एक ऑप्शन तो गया, 3 अटक गए. बोलिए जी आंसर. बोलो बोलो. हाँ अच्छा, बी बोल रहे हैं तो रीजनिंग भी दो. अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं उसको. He's investing in other similar places. With similar challenges. Yet he has to say things about Indian market. So Right. argument ही कॉल है. ठीक है जी. अच्छा और कोई बताना पड़ेगा भैया. 10 लोग बैठे हैं, कोई 100 लोग तो बैठे नहीं है. बताओ जी, बताओ बताओ बताओ. बताओ जी बताओ. बताओ. हाँ निष्कल बताओ. ऑप्शन ये और कह रहे हैं मुझे तो याद है, मैंने अटेम्प्ट करा हुआ है. हाँ बताओ. लेकिन रीजनिंग क्या है? रीजनिंग हाँ. His main problem with the passages, in the passage that he spotted, was corporate governance with her. तो जो आपने जो बोला, हेलो क्या नाम है, कावेरी, बिल्कुल ठीक बोला है. अब सुनना, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है. ए बेटर है. यू नो व्हाई? बिकॉज इट टाइज इन क्लोजली विद द पैसेज मोर देन द सेकंड वन. सेकंड भी ठीक आंसर है बाय द वे. सेकंड इज नॉट इनकरेक्ट एट ऑल. द रीजनिंग इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर करेक्ट. यू नो व्हाई दिस वन इज द आंसर? बिकॉज इसी पे भैया ने कम से कम 2 पैरा लिखे होंगे पिछले पेज पे. अंडरस्टूड? अब एक मैं बताता हूं अभी, एक ये सब करके एक ब्लैक होल वाली फीलिंग आएगी. ब्लैक होल की फीलिंग आएगी. वैसा काम तो इन्होंने बहुत अच्छा करा है, लेकिन मैं आंसर तो क्रिस्टल क्लियर तरीके से पकड़ नहीं पा रहा है या पकड़ नहीं पा रही हूं, है ना. बहुत ही अच्छा है. ये वाला जो सिलेबस, ये वाला जो एग्जाम है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो हमने जो कल की क्लास करी थी, मैं बोल रहा हूं एडॉप्शन इनैक्टमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बताओ. बताओ डेट बताओ. ईयर 1949. क्लियर है सब कुछ? इट्स ऑल राइट. क्योंकि पता है क्रिस्टल क्लियर आंसर है. इसमें कभी भी आप इस अप्रोच में नहीं बैठेंगे कि मैं पूरा आंसर पकड़ पाऊंगा. मतलब कि मैं आपको बोलूंगा और आप बता देंगे फ्रॉम मेमोरी. नो, इट विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डिपेंड ऑन options and the question given. सॉल्व करना पड़ेगा. You won't have the answer prior unless and until it's a current affairs का question. This passage is all about money and investment and all this jazz. मैं बजट पे क्वेश्चन पूछ जाऊंगा करंट अफेयर में. मैं पैसे पे क्वेश्चन पूछ जाऊंगा कि इस साल इंडिया की जीडीपी में क्या थी, या कोई रैंकिंग मान लो, कोई वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये भी पूछ सकता हूँ वो इंडेक्स हैज बीन पब्लिश्ड बाय व्हिच रिपोर्ट. जस्ट गिविंग यू हाइपर. उसी थीम का करंट अफेयर पूछा जाएगा. अंडरस्टूड राइट? यू नो व्हाई इवन द टॉपर्स आर नॉट स्कोरिंग बियॉन्ड 63? क्वेश्चंस सच एज दीज. यहां पे आप गलत हो गए. You have my full sympathy and empathy. ऊपर वालों में गलत हुए. You have my full sandal with you. क्या उसमें कैसा तू गलत करेगा? इसमें तो मैं मान लेता हूं. उसका कारण मैं तो आपको बताता हूं. मुझे भी आप एग्जाम में डाल देंगे, मेरे से गलती होगी, पक्का होगी. आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू. पक्का होगी मेरे से गलती. इनमें होती है गलती. द ट्रिक इज दिस वर्ड मोस्ट एंड correlate the option which ties in more specifically to the position taken by the author in the passage. Are we clear on this? Clear hai ji? Okay. The primary concern of the author regarding India's market is, कह रहे भाई प्लीज अब हो गया ना,
अब हो गया फिर से। अब देखिए सुनिए, मेजॉरिटी ऑफ पैसेज में इससे ऊपर क्वेश्चन बनते नहीं है, तो अब क्या करा जा रहा है, अब सेम चीज को दोबारा दोबारा पूछा जा रहा है। एग्जाम वाला भी यही करता है, और इन एग्जाम्स के साथ मुसीबत ही यही है कि भैया पूछ तो लिया अब तुमने सब कुछ, वगैरह नहीं रहे, बस दो और। चलो देख, प्राइमरी कंसर्न क्या है जी, लैक ऑफ कल्चरल अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट्स। हाँ, बेकार की बातें मत करो। बी, द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ सोशल पॉलिटिकल डायनामिक्स, हो सकता है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट्स एंड इनकम इनइक्वालिटी, एब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्विजीन ऑप्शंस, हटा पड़े। दो तो भैया बाय बाय है, अब दो बच गए। सुनिए, ये भी हो सकता है, अगर मैं जनरली देखूं तो शायद ये भी हो सकता था, लेकिन पैसेज में एक्सप्लिसिटली बात किसकी करी गई है? मुबारक हो, आपको ऑप्शन हुआ है। That's how you spot it. अब पैसेज का लेवल बदल जाता है, कभी इकोनॉमिक्स पे चले जाए, कभी आर्ट्स पे चले जाए, कभी किसी किताब में चले जाए, कभी किसी एडिटोरियल को पकड़ लेगा और कहेगा आजा, है ना? तो यही है नलसैट पार्ट, ये तो यही इतना ही है, राइट? ओके, which of the following statements would the author most likely agree with? इसका मतलब अब जो ऑप्शन आने जा रहा है, ऑथर भैया कहेंगे मेरी एफिनिटी है इस पे, I like this option because it holds the same position as mine. All right. India's cultural heritage has little impact on its business practices. बोले ट्रैश कैन या हो सकता है, दो ही ऑप्शन है आपके पास। India's cultural heritage has little impact on its business practices. हो सकता है, नहीं हो सकता। बोलो ट्रैश कैन में डालें या हो सकता है पे डालें? नहीं हो सकता, ट्रैश कैन में। ये कावेरी जी तो ट्रैश कैन में डाल दिया उन्होंने। आप बोले, समीर जी बोलिए। हो सकता है क्योंकि लिटिल इम्पैक्ट बोल रहा है बिजनेस प्रैक्टिसेस में, तो ऑथर एग्री करेगा? शायद कर सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए कल्चर हेरिटेज। तो आप इसको रखना चाहते हैं, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बाकी आप बताएं। ट्रैश, हाँ जी ट्रैश, चलो जी सब फटाफट चले गए, ट्रैश ही है, हो सकता है। ठीक है जी, कावेरी जी ने बता दिया, कंसिडर कर लेंगे। ओके, द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडियन मार्केट्स आउटवेज एनी कंसर्न्स अबाउट गवर्नेंस, विल ही एग्री विद? सुनो, इसमें तो मैं पूछ भी नहीं रहा कि ट्रैश हो सकता है या हो सकता है, इसको तो तुम सीधा उठा के बी ना मार्क कर देना। टाटा। Growth potential is going to get hit by governance, that is for sure. The author will disagree with it, है ना? Okay. A robust legal framework is essential for investor confidence. कर सकते हैं सर, अग्री कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, और आगे देखें, Indian markets are well suited for short-term speculative investments. बताएं, पैसेज में जाके देखना कोई शॉर्ट टर्म, ये आपका ये हैं जी, लॉन्ग टर्म लिखा था। अच्छा, मुझे बताओ कि शॉर्ट टर्म के बारे में तो बात ही नहीं करी सर ने, शॉर्ट टर्म के बारे में बात नहीं करी। और वैसे भी ये स्पेकुलेटिव आदमी है नहीं, इसने पूरे पैसेज में एक ही राग गाया है, उसका नाम क्या है? नहीं, इसने एक ही राग गाया है कि मुझे प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मुझे सब कुछ स्टेबल चाहिए, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, है ना? तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। अच्छा, अब देखते हैं, कीप दैट इन माइंड। तो ये तो पक्का बेकार है। अब हमारे पास दो हो सकता है ऑप्शंस रह गए हैं, है ना? अब बोलो, ये या ये? बोलो। बोलो, ए या सी? ए वाले कितने? ए वाले हैं आप, ठीक है जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो मर्जी करो, क्या फर्क पड़ रहा है। सी वाले कितने? रिया कह रही है मैं तो बिल्कुल ही
मैं तो बिल्कुल ही मतलब मेरे को तो दुखी हो गई मैं तो। कोई बात नहीं, ऑफलाइन कोचिंग के 100 फायदे हैं, ऑनलाइन में ये पता नहीं चलती है बात। ठीक है जी, सी वाले अपनी अपनी रीजनिंग दीजिए, बोलो कोई रीजनिंग दो। एक्चुअली से स्टेबिलिटी और परफेक्ट डाटा के पीछे हो रहता है, तो लीगल फ्रेमवर्क उसके लिए एसेंशियल रहेगा। और रोबस्ट है, रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क कि अगर आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेरे लिए अच्छा करा सकते हैं तो मैं पैसा लगा दूंगा, है ना? He'll agree with this. Second, India's cultural heritage has little impact on its business practices. Actually agree तो वो इससे भी कर जाएगा, लेकिन इसलिए आंसर हो जाएगा। So this is the better answer. You know why? Your answer is also correct. A is correct. No problem at all. However, given his position in the passage, वो पूरा अगर पैसेज पढ़ेंगे तो मुझे ट्रांसपेरेंसी दे दो, मुझे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे दो, मेरा काम ठीक करा दो, यही गाना गा रहा है ना, उसके हिसाब से ऑप्शन सी बेटर ऑप्शन चॉइस। और अभी कहीं आपको गलत फहमी हो गया, हाँ बस आज की क्लास कर ली, अब मेरे ऑप्शन बिल्कुल ठीक होने लग रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। अभी आप देखिए क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया, दो तो आपको ऐसे मिल गए जो सर घुमाना शुरू हो गए कि अब इसके अंदर तो भैया दूसरा ही कहानी यही होगा एग्जाम में। तो कुछ क्वेश्चन सिंपल और मॉडरेट होंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे टफ, और अभी हमने टफ वाले अभी एनकाउंटर ही नहीं करे, कह रहे भैया अभी और है, अभी तो पार्टी शुरू हो रही है, आज तो पहली क्लास है कि नहीं? राइट, ठीक है जी, ओके लेट्स गो। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? अब हमेशा याद रखना, सेंट्रल जो थीम जो है, सेंट्रल थीम इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। There can be options which are generally true, but that doesn't mean that they're the central theme. What is the central theme of this batch? The 3-year LLB entrances. That's the central theme. I can also get the CLAT guys in. I don't work with them as of right now. I'm not working. Next year I'll be working with them. You know what? This is pretty much the same thing in CLAT as well. It isn't exactly all that entirely all that very different. It's just that वहाँ पैसेज छोटा हो जाता है एंड ऑप्शंस इतने टफ नहीं, क्योंकि वहाँ नन्हे मुन्ने चिंटुओं को पढ़ाना पड़ता है। वो कहते हैं कि अगला सीजीआई मैं बनूंगा। अरे प्रभु तुम दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज ही बन जाओ तो बहुत बड़ी बात है, सीजीआई पूछा जाएगा तो ख्वाब तुम छोड़ो। खैर एनी व्हिच वे, द सेंट्रल थीम इज द मेन आइडिया दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज। ऑलराइट, लेट्स सी क्या करें। Cultural and historical significance of India, is that the main underlying theme? No. It is not the cultural and ये आपका जो भी heritage, historical significance. The challenges and opportunities presented by the Indian market. हो सकता है, ठीक है जी, ओके देखते हैं। Necessity of adopting investment strategies in different countries. हट पर कौन सी different countries के बारे में बात करी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। The importance of corporate governance in investment डिसीजंस। बोलो जी, अब कह रहे जी अब आ रहा है मजा, बताओ जी, बी या डी? बोलो है ना, बोलो बी पक्का? डी क्यों नहीं? He is more focused on India, ना? He's not generally talking about how corporate governance. This was one of the points. This was not the central point. The main point was Indian markets. Clear है कि नहीं है? कह रहे भैया उसके बाद फाइनली जान छुटी लाखों पाए, पिछले साल का करंट अफेयर क्वेश्चन था, ये आपको अब कोई करने की जरूरत नहीं है। However, अब तो खैर मुझे तो याद भी नहीं, आई थिंक इसका आंसर है ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, जो मुझे याद आ रहा है, GEP. Uttarakhand has become the first state in the country to assign monetary value to 4 of its natural resources. What is the name for the value? Gross environment product. देखते हैं। August 24 से ये आपका बेसिकली उत्तराखंड becomes first state
टू इंट्रोड्यूस ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, ये सारा काम मैं आपको करके दूंगा, मेरा काम है ये, to filter all of this out. I basically become active in current affairs from July onwards only for these examinations. उससे पहले करने की जरूरत नहीं. उससे पहले जो अभी तक हुआ है that is ऑपरेशन सिंदूर. बस ऑपरेशन सिंदूर कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है जी, वो भी कर लेंगे. एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, मतलब ये मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, बट आई वांट यू टू बेसिकली बी बेटर प्रिपेयर्ड. वाह, हमारे वाले पे कोई ऐड भी कर रहा है. और एक तो ये चैनल है, इसको छोड़ दो, ये हमारे लिए नहीं है. ये जुडिशरी और LLM और ये आप मिलेंगे जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो आपको इस पे आना ही पड़ेगा. इसके बाद लेक्चर्स हैं, सेमेस्टर के लेक्चर्स. ओके, एक खैर मेरा बेसिकली मेन काम ही बेसिकली यहाँ पर है. एक चैनल है ये, अच्छा भैया काम करने को राजी नहीं है, तो कोई बात नहीं, गिव मी 1 सेकंड. बिकॉज इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ जाएगी. म्यूट होने को हमारा बोर्ड इस टाइम पे चल नहीं रहा है. ईश्वर करे चल जाए, कोई बात नहीं. वहां से नहीं चलेगा तो यहां से चलेगा. ओके, This is the छोटू चैनल which is just started. 370 सब्सक्राइबर्स, कोई आता ही नहीं, कह रहा नहीं कुछ आ जाएगा. ये 2 लेक्चर्स से सारे नोट्स निकाल लेना. ऑपरेशन सिंदूर, सारी जितनी ऊपर नीचे सारी डिटेल. भाई ऑपरेशन सिंदूर क्लैट में पूछे, एनएल सैट में पूछे, ऑपरेशन सिंदूर तो ऑपरेशन सिंदूर ही रहेगा. और एक ये है इंडस वाटर ट्रीटी, शिमला अग्रीमेंट, पहलगाम, सब कुछ है. नोट्स निकाल लेना. दोनों लेक्चर्स आई बिलीव एक 19 मिनट का, एक 7 मिनट का है. कृपया करके होमवर्क फॉर नेक्स्ट वीक. करंट अफेयर्स की नोटबुक अलग चाहिए, ठीक है. दीज आर दी 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स. अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं कवर नहीं करने वाला यहाँ पर. जब मैं एक फिल इन द ब्लैंक की प्रेजेंटेशन लेकर आऊंगा, ये देखे होंगे तो आंसर कर पाएंगे, राइट. देखिए, all exam preparation is geared towards only one thing and one thing only. There is only one success, basically one matlab guide to success. You know what that is? The key word is repetition. You go to a gym, you want to make a dola, what do? You want to reach God, what do? अरे मंत्र जपो, 108 की माला, ये वो क्या है? Repetition. मैं इतनी बार करा दूंगा ये सब जो भी रेलेवेंट है कि वो पूछेगा और मेरा काम है. आपको पता होगा कि हाँ बोला था इन्होंने, राइट. ठीक है जी, ओके. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. सो दिस इज डन नाउ. ऑलराइटी, 15 मिनट है. एक पैसेज अभी और नहीं करेंगे, नॉट टू वरी ऑन इट. जरा थोड़ा सा और काम करके देखते हैं. पार्ट बी में आ जाइए ताकि हमारी पूरी इंट्रो हो जाए. हमारा पार्ट बी का पहला केस देखिए. बड़ा छोटा सा केस है, बड़ा ही छोटा सा केस है. Shivangi visits a newly opened shopping mall which has an automatic revolving door at the entrance. While entering the mall through the revolving door, the door suddenly malfunctions and rapidly accelerates, causing Shivangi to be struck and injured. The mall management claimed that the door was regularly maintained and the malfunction was an unforeseeable technical glitch. Shivangi, however, alleges negligence on the part of the mall management. Shivangi files a suit for damages. So damages in law basically are, there is the word damage, that is English, कि damage हो गया है जी, something कुछ नुकसान हो गया है. What are damages? पैसे चाहिए. Compensation in law formally known as compensation goes to South Delhi turns into damages. Suddenly sounds very fancy, right? Okay. You are the adjudicator of the suit. How would you decide and why? So you are free to take
either the mall side or Shivangi's side, go ahead. However, नंबर उसके नहीं है कि किसकी साइड ली थी, नंबर किसके हैं, रीजनिंग के, कि क्यों साइड ली थी वो बता. वहां पे कोई आंसर बंदा लिख रहा है नहीं शिवांगी इज अ गुड वुमन, यू नो, शिवांगी डिडंट डिजर्व टू बी हिट बाय दैट. अरे कह रहे अरे सैंडल से पिटाई करूंगा तुम्हारी. ये रीजनिंग नहीं है. चले, अभी मैं कोई आंसर, आज वी आर जस्ट ओपनिंग आउट, तो अभी कोई टेंशन नहीं है. व्हेन वी डू अ डेडिकेटेड पार्ट बी, आई हैव ऑल द गुड आंसर्स विद मी, ऑल द बैड आंसर्स विद मी. आई विल शो यू एंड देन गेट यू टू राइट एन आंसर. अभी हम कुछ नहीं कर रहे. दिस इज एन ओपनिंग क्लास, टेक इट इजी, राइट. पार्ट बी में ऐसे 5 केस आएंगे 12 मार्क्स के. मुझे केवल लीगल रीजनिंग देनी है और कुछ भी नहीं देना है. कोई प्रवचनकारी नहीं चाहिए मुझे इन आंसर्स के अंदर, राइट. ये बहुत छोटी सिचुएशन है. यूजुअली एग्जाम में तकरीबन जब पेज स्टार्ट होगा तो यहां तक होगी सिचुएशन. In these mocks, you will find longer situations, you will find shorter situations. The shorter situations did come in 23 का पेपर. पार्ट भी उसका उपलब्ध नहीं है, because I interact with so many students, तो मुझे पता रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. 22 में there were longer situations, 24 में it was a mix, 25 में again there were longer situations. Alright? So we need to work on both, wherein we are given some assistance by the question to solve it and some assistance by the question wherein there are no details. मान लेते हैं you are hired as an advocate for Shivangi. What do you do? How do you argue? बोलो, आर्ग्यू करो, शिवांगी की तरफ से आर्ग्यू करो. आप शिवांगी के वकील हैं भाई. हम सब खुद के वकील और दूसरों के जज हैं. ये बात याद रखेंगे जीवन में. लोग खुद के वकील और दूसरे के जज हैं. बोले, शुरू करें. मैं जज हूं, आप अपना शिवांगी का क्लाइंट. रिया जी शुरू हो जाओ, बोलो. मैनेजमेंट करवा रहे थे, बार-बार रिपीट करके, स्टिल अगर किसी को लगती है वो आएगा तो मॉल पे भी तुम शिवांगी की अगर वकील हो तो तुम्हें ये पॉइंट ही मत रेज करो ना कि ये मॉल वॉल में करा रहे थे मेंटेनेंस, ये वो बाद में आएंगे, है ना. हाँ जी, हाँ वो लिखा हुआ है तो मॉल साइड का डिफेंस है. हाँ तो मॉल पे ही आएगा. यू आर फुल्ली लायबल. आप मेंटेनेंस करा रहे थे तो इसको ऐसे हम वर्डिंग करेंगे दैट fully doing their maintenance and labeling it as an unforeseeable technical glitch doesn't justify Shivangi getting struck and injured. Therefore, we seek damages from the mall because the mall is fully liable. है ना. इनफैक्ट इसका एक ही आंसर है शिवांगी की साइड से कि पैसा तुम ही दोगे चाहे कुछ हो जाए. मॉल की साइड, अच्छा चलो मेरे को लेना है, मुझे लगता है कि मुझे मॉल की साइड से आर्ग्यू करना है. इस सिचुएशन में ज्यादा कुछ है नहीं आर्ग्यू करने का. मॉल की साइड से आर्ग्यू करना है. क्या करूंगा मैं? आपको मॉल का वकील हायर कर लिया गया, आप शिवांगी की साइड से ना बोल दें. तो इसमें मैं आर्ग्यू करूंगा शिवांगी गधी है? नहीं. वो आर्ग्यू करेंगे तो इट वोंट मेक एनी लीगल सेंस. आप आर्ग्यू क्या करेंगे? इस पे आप स्ट्रेस करेंगे दैट वी टुक ऑल ऑफ आवर प्रिकॉशंस, वी डिड एवरीथिंग एज अ मॉल and we maintained all. There was the maintenance schedule was regularly followed as stated in the information given. And malfunction was an unforeseeable technical glitch. We had no intention for her to get injured. It was unforeseeable. It could have happened to anyone, right? Shivangi, however negligence, you are the adjudicator of the suit. How would you decide and why? You can decide in Shivangi's favor or you can decide in Mall's favor. The marks are for the reasoning. But इस situation में ज़्यादा कुछ है नहीं आपके पास to play around with. कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप ज़्यादा. It is a very crystal clear situation. Either you are here or here. You can also, in fact, let go of the Mall's liability and still award some damages. You are free to do whatever the hell that you want to do, as long as it makes legal sense. You are not allowed to use a section even if you know the law. क्योंकि हम टॉट और थोड़ा बहुत वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे वहाँ CUTPG में. कुछ यूज मत कर देना गलती से भी. कोई सेक्शन नंबर नहीं चाहिए, कोई लैटिन मैक्सिम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. लीगल रीजनिंग की
सेंस चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे 20 क्लासें हो गई है ना, मान लेते हैं जुलाई होगा, सितंबर, अक्टूबर सब निकल गया, नवंबर में कोई मेरे से आके रिफंड मांग रहा है कि मेरे को भाई साहब थोड़ा रिफंड, मुझे बताइए डज इट मेक सेंस? नहीं। लेकिन शुरुआत की पहली क्लास के बाद कहता है नहीं मेरा तो अब आने का मन नहीं है, तो अब नाउ तो इट मेक्स, है ना, नाउ इट, वेदर द लॉ एग्जिस्ट्स और नॉट, वी नीड नॉट हैव इवन स्टडीड द लॉ, इट शुड बी, अगर मैं नेचुरल से, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, आई कैन स्टिल डिसाइड based on common sense. Law is nothing but common sense exaggerated beyond its limits to make it sound so fancy, ताकि भाई सबकी रोजी रोटी इस पे टिकी हुई है, हमारी भी टिकी हुई है, वकीलों की भी टिकी हुई है, जजों की भी टिकी हुई है। अगर बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड कर देंगे तो हो गया सारा का सारा काम। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस, दे आर आस्किंग यू टू यूज योर कॉमन सेंस। क्लियर है ये मुद्दा कि यहाँ पे करना क्या पड़ेगा हमें, है ना? अच्छा, दूसरी सिचुएशन, अच्छा जगह इतनी ही है, इतना ही डब्बा मिलेगा, इतना ही करना है, ओके। प्रभ एन एविड टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट, ये बाय द वे सारे पुराने स्टूडेंट्स के ही नाम है। यूजुअली क्या होता है कि काफी दूसरी अकेडमियां भी काफी भाई मॉक होता गया, सबका स्कैन करके पीडीएफ इधर हो जाती है। अगर कहीं आपको दिखेंगे तो काफी लोगों ने नाम नूम बदल के सेम ही सिचुएशन दे रखी है। ये मेरे सारी सिचुएशंस बनाई हुई है, मैं यूजुअली सारा का सारा काम खुद ही करना पसंद करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें क्योंकि क्वालिटी पे फोकस करना पड़ता है। सिचुएशन हर टाइप की है, देखिए थोड़ी सी सिचुएशन मैंने बढ़ा दी है, दैट्स व्हाई अक्रॉस द मॉक्स, in fact in mock 9 mock 10 you will find 1 page long situations as well, which accurately reflect what the exam does to you, right? You will find fictional situations, you will find hypothetical situations, and guess what, more on the way. अक्टूबर भैया 3 months away, more on the way. मैं अपनी तरफ से पूरा काम करा दूं, बाकी एफर्ट आपने डालनी है। इस गलत फहमी में मत रहिए कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो हो ही जाएगा, कुछ नहीं होता। मैं आपको आज बता देता हूँ, ये एक सपोर्ट सर्विस है, एंसिलरी सपोर्ट सर्विस है टू बूस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर स्कोर। और आप रिजल्ट यूट्यूब वीडियो वगैरह देख कर आए तो रिजल्ट्स बेसिकली आर प्रूफ कि हाँ भाई जो काम करा रहे हैं ठीक करा रहे हो। 3 बार अच्छे रिजल्ट, 3 बार क्या 4 बार अच्छे रिजल्ट आए तो, क्योंकि 23 में कोई रैंक लिस्ट थी नहीं तो आई कांट बोस्ट अबाउट द रैंक्स देयर, दैट इज प्रूफ, इट हैज बीन प्रूव्ड कि काम तो ठीक ही हो रहा होगा, है ना? चलें, प्रभ आए हैं एंड ही इज वॉच्ड अ वीडियो जनरेटेड बाय TLOI, न्यू टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल डेवलप्ड बाय लीडिंग टेक कंपनी, ग्रेट वर्क। तो टेक्स्ट डालो वीडियो निकल आता है। जो आजकल हो रहा है वो इंस्टाग्राम पे वो मोंकेश भाई के व्लॉग चल रहे हैं, देखें AI जनरेटेड है, बंदर आ रहा है वो व्लॉगिंग करते हुए कि मतलब, और उसमें डायलॉग भी सब AI है, टेक्स्ट डालिए वो बन जाता है वीडियो in about 30 seconds. The video which Prabh finds on a popular depicts a futuristic scenario where a specific type of investment in virtual reality startups leads to substantial financial gains. Great work. Believing the video to be a factual prediction, Prabh decides to invest a significant portion of his savings into various. Unfortunately, the investment leads to substantial losses as the video's content was purely fictional and speculative. Prabh now intends to sue the tech company for his financial losses, alleging that the video was misleading and caused him to make a detrimental life decision. If the case were given to you for a decision, how would you decide the case and why? बोलो। अभी आंसर लिखना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। We'll discuss. ये वाले आंसर्स you're going to write. I'll show you the good answer that I find to be the good answer and I'll show you the bad answer, the one that I find a disaster. ये वाले असेस नहीं करेंगे, असेस मॉक सीरीज वाले करेंगे जो इस साल, ये तो डिस्कस ही कर लिया, अब इसको क्या ही असेस करेंगे। बोलो। मेन आर्ग्यूमेंट फॉर द कंपनी, he did the company guarantee any profits, we were just explaining a strategy. Okay, अच्छा ठीक है, अच्छा पॉइंट है। और बोलो। कंपनी ने बोला था पैसा लगाने को,
कंपनी ने तो एक वीडियो पब्लिश कर दिया, उसके बेसिस पे अगर आपने अपना घर बेच के पैसे लगा दिए तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी एनी विच वे इज अ टेक कंपनी. Nowhere in the video was it set. आपको इन्फॉर्मेशन तो नहीं, वीडियो तो सच्चा था ही. कंपनी तो वैसे भी एआई कंपनी, टेक्स्ट डालो वीडियो बना देगी, उसका क्या लेना देना? हाउ डू वी होल्ड द कंपनी लायबल? अगर आपको प्रभ का वकील बता दूं तो आप इस पे लड़ सकते हैं कि द कंपनी शुड हैव पब्लिश्ड अ डिस्क्लेमर बिफोर द वीडियो दैट दिस इज प्योरली फिक्शनल, काइंडली डू नॉट make any investment based on this video. Since that element was missing, the company is liable. Now does it make sense? This is an extremely strong point. And company का वकील, भाई साहब हमारी क्या गलती है? मेरे ने कब कहा आपको ये करने को, है ना? और मैं तो वैसे ही एआई कंपनी हूं, मेरे को तो टेक्स्ट में डालोगे कि भगवान नीचे आ गया तो मैं तो वीडियो बना दूंगा. तो कल को क्या मान लोगे कि भगवान नीचे आ गया था? ऐसे मान के अगर आपने पैसा लगाया तो रिलायबिलिटी किसकी? आपकी. इसी को बस एक्सप्रेस करके लिख के आना है. लेकिन पता क्या दिक्कत है? मार्क्स एक्सप्रेशन के और रीजनिंग के. द वे दैट यू आर एक्सप्रेसिंग दिस एंड द वे दैट यू आर रीजनिंग दिस. तो जिसने बेटर एक्सप्रेस करा, और सेम रीजन, जिस मान लेते हैं हम सेम रीजन पे खेल रहे हैं, बट द एक्सप्रेशन इज वे बेटर बिटवीन टू आंसर्स, एंड I'll show you what a good expression is, what a bad expression is. I have over, roughly speaking, 2000 odd mock answer copies in my storage. भाई मुझे 4 साल हो गए करते हुए, मतलब जब NL-SAT शुरू हुआ था पहले साल से ही 4 साल हो गए करते हुए. मेरे पास है डेटा. तो मेरे जो पसंदीदा आंसर्स हैं, जो दिल के करीब है, एफिनिटी जिसमें मेरी है, मैंने अलग स्टोर कर रखे हैं. और जिनसे मुझे और प्यार है, क्योंकि वो बेकार ही इतने थे. ऑफ कोर्स मैं रिवील नहीं करूँगा किसने लिखे थे, क्या थे, क्योंकि बहुत लोग मॉक सीरीज में आ जाते हैं. तो वो भी दिखा दूँ कि लो जी, दिस इज द बेकार वे, और उसको देख देख के आप सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड दैट्स द वे टू गो अबाउट NL-SAT. करंट अफेयर्स तो साथ में चलते ही रहेंगे. करंट अफेयर की क्लास तो चलती ही रहेगी, है ना? करंट अफेयर की क्लास साथ में चल जाएगी. अभी जुलाई खत्म होने दीजिए, अगस्त में आपको करंट अफेयर्स करा दूंगा. करंट अफेयर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट्स हैं. दैट्स इट. दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट. एंड देन एसे राइटिंग लास्ट में, नवंबर दिसंबर के आसपास we'll do our essay writing, है ना? And that's it. So this is it. This is the class for today. ठीक है जी. अच्छा, अब अगली क्लास में क्या करेंगे? NL-SAT की क्लास से पहले आपको मैसेज आ जाएगा कि कौन से मॉक की कॉपी आपने कैरी करनी है. कृपया करके उस मॉक की कॉपी आप उस दिन कैरी करिएगा, केवल उसी मॉक की. अभी थोड़े टाइम के लिए मैं आपसे शायद मॉक 1 ही दोबारा बुलाऊंगा और फिर मॉक 1 करते हैं, है ना? अच्छा, टू सेव ऑन टाइम कभी मैं आपको कहूंगा कि आप ये मॉक सॉल्व करके लाइएगा. वी आर गोइंग टू डिस्कस द आंसर्स सो दैट वी नीड नॉट स्पेंड द 7 minutes 10 minutes इन रीडिंग द पैसेज. आप सॉल्व करके आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना? आप अपने आंसर अपने मन मुताबिक सॉल्व करके आइएगा. आई एम नॉट जजिंग यू. यू कैन मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज यू विश टू. इन मॉक्स में भी एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस चर्चा. एंड NL-SAT में इसके अलावा अभी एक कोर थ्योरी की क्लास होगी जिसमें मुझे कोई मॉक की कोई जरूरत नहीं है. आई हैव सम कस्टमाइज्ड मटेरियल विद मी which is going to exactly show you what is an assumption, what is strengthening the argument, what is weakening the argument, what is an inference, what is the conclusion, what is the central theme. We are going to extract those out. As in, there won't be an MCQ, but we are going to deduce it. Right? तो वो एक core concept की हमारी क्लास हो जाएगी. ठीक है जी? Alrighty. See you Thursday. है ना? Thursday, Friday, Saturday हमारी क्लास है. It can be shifted out to Monday, Tuesday, Wednesday afternoon. हमारे शेड्यूल का आप देखते हैं, बट कहाँ से क्या हो जाता है. बट यूजुअली विल ट्राई टू कीप इट ऑन द सेम शेड्यूल. ऑल राइटी देन, सी यू थर्सडे को कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, स्टैटिक जीके की नोटबुक साथ में ही रहेगी. मेक नो मिस्टेक अबाउट इट. स्टैटिक जीके की नोटबुक इस एग्जाम में भी साथ में ही रहेगी. NL-SAT की क्लासेस में वोकैब की नोटबुक साथ में रहेगी. वोकैब इज स्टैटिक जीके फॉर NL-SAT. ठीक है जी? ऑल राइटी. सी यू थर्सडे. ठीक है? हाँ जी.